Hi, good evening. Welcome back. 12th Science Physics Part 2, Chapter number 16, Semiconductor Devices. This is my 6th lecture on the topic. I hope you have gone through all the 5 topics which I have covered on this topic, and I hope you have understood all the concepts. Remember, you have to listen or watch the video, and simultaneously you have to read the textbook. That will make your concept very clear. Okay, let's start today's lecture number 6 on the topic semiconductor devices. This is 12th Science Physics 2, chapter number 16. Today we'll start with the topic solar cell or photovoltaic cell. Now, photodiode we have seen. Photodiode, it uses this particular amount of energy or light to convert it into electrical energy. Solar cell or photovoltaic cell convert solar energy into electrical energy. It converts solar energy into electrical energy. Now there are two types of solar cell. One is photovoltaic cell and second is photothermal devices. Photothermal devices. The function of both is to convert solar energy into electrical energy. They both use PN junction diode to convert light energy, that is solar energy, into electrical energy. Next, moving forward, is structure of a solar cell. This is the structure of a solar cell. Now, this is load resistance. From here, we can take the power output. This is base P side, this is N side. See this strip which I am marking here. This is N, this is P, this is N, this is P, PN junction. This is front contact, this is rear contact. This is sunlight, this is positive, this is negative. Current will flow from positive to negative और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरीके से जाएगा. सनलाइट आएगा. दिस इज एंटी कोटिंग रिफ्लेक्शन और एंटी कोटिंग रिफ्लेक्टिंग एंटी रिफ्लेक्टिंग कॉन्टैक्ट. इतने बाद में एंटी कॉन्टैक्टिंग रिफ्लेक्शन लगा के रखा है या हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन लगा के रखा है, सो दैट जो लाइट गिरेगा वो वापस रिफ्लेक्ट होके चला नहीं जाएगा. This is emitter, which is nothing but N side. Base is nothing but P type, N type, P type. This is front contact and rear contact. Front contact should be exposed to the sun, and this material, this P type, N type material should be properly doped so that electron and hole can be created easily. Rear contact is on the opposite side of the front contact. Load resistance is connected here to take the power output. This is nothing but the structure of solar cell. Easy है, कुछ भी नहीं है इसमें. Working of a solar cell, ये भी easy है. सेम टाइप है. यहाँ पे अभी थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया. ये फ्रंट कॉन्टैक्ट है. ये देखो फ्रंट कॉन्टैक्ट, रेयर कॉन्टैक्ट, फ्रंट कॉन्टैक्ट, रेयर कॉन्टैक्ट. ये सनलाइट है. यहाँ पे ये सनलाइट था. अभी यहाँ पे ये जो पीएन जंक्शन है, ये पी टाइप एन टाइप, इसको मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया. ये जो है वो डेप्लीशन लेयर है. देखो डॉटेड लाइन से बना के रखें. ठीक है. क्या होगा जैसे पीएन जंक्शन यूज करेंगे, सॉरी, एक डेप्लीशन लेयर फॉर्म होता है ऑटोमेटिकली, और वो डेप्लीशन लेयर कोई भी मूवमेंट होने नहीं देता. वो डेप्लीशन लेयर में डिफ्यूज आयन रहते हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन होके पड़े रहते हैं, और एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट कर देते हैं जो डिपेंड करता है सिलिकॉन के लिए कितना है, और जर्मेनियम यूज़ होगा तो कितना, और कोई मटेरियल यूज़ करोगे तो कितना होगा. पोटेंशियल बैरियर डिसाइड करता है क्या होना चाहिए इसके हिसाब से, मटेरियल के हिसाब से. जब लाइट गिरना चालू होगा, व्हेन इट इज एक्सपोज टू सोलर रेडिएशन, सबसे पहली चीज़ आती है एंटी रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है, एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग है. उसका मेन पर्पस क्या है? तो एंटी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जितनी भी हीट सरफेस के ऊपर आती है, सबका सब वो एब्सॉर्ब करता है. ठीक है. जैसे हीट अंदर आई, हीट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, बराबर है. फोटोन मिलेगी. फोटोन किसके पास जाएगा? सबसे ऊपर है एन टाइप है. एन टाइप से जाएगा. एन मतलब नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगा. वो पोटेंशियल बैरियर क्रॉस करके
पॉजिटिव में जाएगा वैसे एनर्जी ट्रांसफर होते जाएगा, क्योंकि एनर्जी तो नीचे तक जाएगा। वैसे ही पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, मूवमेंट चालू हो जाएगा। देखो ये नेगेटिव ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव नीचे आ रहा है, देख लो पूरा। और जैसे ही कंप्लीट होगा सर्किट, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चालू हो जाएगा, वापस इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा और इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से फ्लो होते ही रहेगा। लोड रेजिस्टेंस से आउटपुट मिलेगा, पावर आउटपुट, जो हम कोई भी सर्किट को कनेक्ट करके इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये जो डोपिंग लेवल है वो कौन सा होना चाहिए, जो मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो फोटो सेंसिटिव मटेरियल होना चाहिए, जैसे लाइट गिरे वैसे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा उसका जो पोटेंशियल बैरियर है वो कम से कम होना चाहिए, बराबर है। और थोड़ी भी लाइट इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो भी अपने को उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, करंट कंटिन्यूस मिलना चाहिए, ठीक है। दिस इज नथिंग बट दी वर्किंग ऑफ सोलर सेल। ये है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोलर सेल। यहाँ पे जो लिखा है ओपन सर्किट वोल्टेज है, ओपन सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज और मैक्सिमम पावर पॉइंट। अभी पावर क्या होता है, पावर इज़ वी इंटू आई। जैसे हम पावर का बात करेंगे तो अपने को दो चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, वी और आई। वी क्या है, वोल्टेज, आई क्या है, करंट। तो मैक्सिमम अपने को पावर कब मिलेगा, मैक्सिमम पावर कब मिलेगा, जब अपने को ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा करंट मिलेगा। तो ये पॉइंट पे अपने को मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम वोल्टेज मिलता है, और ये पॉइंट को हम बोलेंगे मैक्सिमम पावर पॉइंट, ठीक है। ये ओपन सर्किट है, यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज मतलब यहाँ पे आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। जैसे रात के टाइम पे ये दोनों पॉसिबल है, या कहीं पे अगर लाइट का इंटेंसिटी नहीं है तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ पॉसिबल होती है। जैसे लाइट मिलना चालू हो गया, करंट इंक्रीज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है, मैक्सिमम पावर अपने को मिलने लगता है। दिस इज नथिंग बट द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलर सेल। नाउ यूजेस ऑफ सोलर सेल। यूजेस ऑफ सोलर सेल क्या होता है, देखो, दे आर यूज्ड, just a second. Solar cells are used for charging batteries during a daytime so that batteries can supply power during night. They are useful at remote places for supplying power to various electronic equipments from calculator to satellites and space stations, to supply power through traffic signals in communication station एंड लक्स मीटर टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इतनी सारी जगह पे हम लोगों ने बहुत सारी जगह पे देखा भी होगा, जैसे कि जो स्ट्रीट लाइट्स है वो पावर सोलर पावर से चलती है। अभी बहुत सारी अपनी चीज़ें जो है वो सोलर पे ही आने वाली है, सोलर पे चलने वाली गाड़ी भी जापान ने निकाल दी है और जल्दी ही मार्केट में आ जाएगी। अपना जो चेन्नई का और बेंगलोर का जो एयरपोर्ट है वो 40 to 50% जो पावर कंज्यूम करता है वो सोलार से मिलता है। सो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सोलार पे आना चालू हो चुकी है। जो आपका सोलर का आपका जो डायग्राम है वो देखो, छोटा सा डायग्राम है सोलर सेल का, और वो मल्टीपल यूज़ भी होता है। अपने घर पे सोलर गीज़र, सोलर हीटर भी रहेंगे, वो भी देखो। तो ये सब चीज़ें आपको देखने से और भी बेहतर समझ में आएगी, ठीक है। अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लाइट एमिटिंग डायोड।